Hello everyone. So today we are going to start our next chapter, that is chapter 6, retirement of a partner. So what do you mean by retirement of a partner? It means one of the partner in the partnership firm is leaving the partnership from the particular day. So it means partner is retired. तो पार्टनर अब जब किसी भी वजह से आपकी फर्म को छोड़ के जा रहा है तो आपको क्या करना है उसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to find out the new profit sharing relation. Fine, as we did in the 5th chapter, that is admission of partner chapter. तो सबसे पहले बेटा आपने ये सीखना है कि न्यू रेशो कैसे निकालनी है. Then afterwards, अगर suppose कोई person भी जा रहा है, suppose we have 3 partners A, B, C. B is leaving the firm. It means जहाँ आगे 3 पार्टनर थे अब वही चीज 2 पार्ट में डिवाइड होगी. इट मींस A and C will gain here. Obviously एक प्रॉफिट को 3 जने शेयर करते हैं. अब एक लीव करके जा रहा है तो इट मींस बाकी पार्टनर मतलब रिमेनिंग पार्टनर वी आर नोन देम एज कंटिन्यूइंग पार्टनर, वो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? गेन. सो न्यू रेशियो के साथ आपने क्या निकालनी है? गेनिंग रेशियो. So first of all, ये आपने क्वेश्चन करने सीखनी है न्यू और गेनिंग. Then afterwards, revaluation, accumulated reserves, profits, वो सारा concept same है which we have done in the 5th chapter. So first of all, I will make you understand how to find out the new ratio. Let's take an example. If 3 partners are there, the ratio is 3 to 1, and I have marked B. It means B is going out from the firm. Nothing is mentioned. इसके अलावा और हमें कुछ नहीं पता. It means B has gone. So new ratio would be A और C की new ratio हो जाएगी 3:1. It's very simple. तो जब आपको कुछ नहीं दिया तो जो बंदा जा रहा है उसकी रेशो काट के बाकी क्या आ जाएगी हमारी न्यू रेशो. फाइन. एंड गेनिंग रेशो जो होएगी इसका फॉर्मूला क्या होएगा? गेनिंग रेशो इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. मतलब लास्ट चैप्टर में हमने कहा ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग, और रिटायरमेंट में क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड इक्वल्स टू गेन. सो हर पर्सन का गेन आपने निकालना है. मतलब A's gain would be 3/6 minus 3/4. Similarly, C's gain equals to 1/6 that is minus 1/4. In this way, you will find out your gaining shares. Now, the second example is if A, B and C are partner, 1:1 ratio. Now, they have written C is retired. तो C का शेयर कितना 1/3. और एक चीज और लिखी है कि his शेयर मतलब C का शेयर is taken by B. So जिस तरीके से लिखा है आपने उस तरीके से न्यू रेशियो में पुट कर देना. मतलब A's न्यू शेयर would be A का न्यू कितना हो जाएगा 1/3. It would not be changed क्योंकि जो C का शेयर है उसने ले लिया B. So it means इसी फॉर्मूले से हमने न्यू निकालनी है. So here B's share equals to B's new equals to old plus gain.
सी बाय पार्टनर ए। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है, दिस क्वेश्चन में would be according to the two steps. So first of all you will write B's gain. B's gain equals to A का शेयर 5/10 into 2/3। देखो ध्यान से, A के शेयर के आपने दो हिस्से करने हैं, 2:1। So 2/3 would be in the pocket of B and 1/3 in the pocket of C. So in this way you will find out first of all the gain, then the new ones. Now it comes, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आ गया 1/3। अब 1/3 गेन है और न्यू कितना आएगा, old plus gain. So here I would write B's new share equals to old plus 1/3. That comes 1/10, isn't it? So sorry, it would be by the LCM 30. That becomes 19/30. Fine. In the same way, C का कैसे निकालेंगे? C's new would be C's new. First of all, C's gain. C's gain A के शेयर का 1/3. That comes 1/6. Similarly, C's new. C's new would be old. That is 2/10 plus 1/6. It comes 22/60. अब रेशियो कितनी बन गई, 38:22, मतलब 90:11. Fine. In this way you are to observe the transaction or the given information. So यहाँ पे आपने न्यू और गेनिंग रेशियो निकालनी है. Now next question I have written on the board, that is ABC are partners 3:1 ratio और B partner जा रहा है और क्या लिखा है, B surrenders 1/3 share in favor of A. So here 1/3 share in favor of A. So it means B के शेयर का 1/3 आपने करना है, that would be A's gain and remaining in favor of C. तो C का गेन कैसे आएगा, देखो first of all A's gain. A's gain equals to B का शेयर into 1/3. ये कितना आएगा, 1/9. Clear? And C's gain would be B का शेयर minus remaining. मतलब remaining आपने कैसे निकालोगे, total share of B which is to be distributed or divided between A and C, और उसमें से A ने ले लिया 1/9. तो it means बाकी किसके हैंड्स में आ गया, हमारे C के हाथ में. तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ सकता है 18. 6 minus 2 4/18. So it means A का गेन कितना है, 1/9. C का गेन कितना है, 4/18. अब हमने निकालना है A's new. A's new equals to old plus 1/9. Clear? Similarly, C's new. C's new would be old plus gain. Now the next part is treatment of goodwill. So treatment of goodwill में मैंने blackboard पे एक example लिखी है. Goodwill का form would be given to you, that is 3 lakh, और ABC partner में से C partner is going out और C का शेयर कितना है, 1/6. So it means entry क्या होगी कि बेटा जब रिटायरमेंट होती है तो आपने रिटायरिंग पार्टनर को हर चीज दे के लीव करना है, चाहे वो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हो, चाहे वो बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व हो, पीएनएल हो, वर्कमैन हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंशन आउट हो, everything would be provided to the retiring partner. So here first of all goodwill में क्या ट्रांजैक्शन होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर. मतलब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, he will get the share of goodwill, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट. It means जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है they will provide the share of goodwill to retiring partner. That is why वो दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट. और अगर कोई पुरानी गुडविल आपकी बुक में है
So it was about the old goodwill and it was about the new goodwill. New goodwill मतलब retirement के टाइम पे. So again back to example, goodwill is given 3 lakh और C पार्टनर जा रहा है मेरे एंट्री के पास करिए A and B is debited because they are the continuing partner and C is since the retiring partner तो वो क्या हो रहा है credit. So that is why C would be credited और amounts कैसे आपने डालनी है. Here I have given the gaining ratio. तो gaining ratio मेरी आ गई 3:2 और gaining ratio का फॉर्मूला मैंने आपको अभी कराया that is new minus old. So new ratio से क्या बनेगी 3:2 और जिस क्वेश्चन में हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है न्यू और ओल्ड का हमारी गेनिंग सेम आती है बेटे. So that is why 3:2 would be applicable here. Clear? So one more concept in goodwill is that is given in your book, that is what goodwill account raise करके write off करना. Just a minute. Suppose A, B, C partner are there. 1:1:1 their ratio. Goodwill of the firm is 3 lakh. Clear? Now what they have given, C का share, C is going out, C का share B ने ले लिया. मतलब new ratio would be B is new would be old plus gain that becomes 2/3 और A का कितना बेचारे का सेम. इट मींस हमारा आंसर आ गया new ratio का 1:2. अब 1:2 मेरे को क्यों चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कई बार बेटा क्या लिखा होता है कि गुडविल अकाउंट रेज करके राइट ऑफ करो. मतलब the accounting treatment is done or the journal entry is through goodwill account. ऐसे लिखा होता है कि pass the journal entry through goodwill account. तो goodwill account के थ्रू एंट्री पास करने का मतलब ये है कि आपने goodwill रेज करनी है मींस 3 lakh और अगेन आपने राइट ऑफ करना है. तो बेटा रेज करना मतलब goodwill account is your asset. तो assets are always debited. तो आपने एंट्री क्या कर दी है. फर्स्ट एंट्री would be goodwill account debited. Since आपकी goodwill क्या हो गई रेज और to A is capital, to B is capital, to C is capital. This is called old. This must be the old ratio. That is what 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. चलिए आपने zeros डाल दिए. Then second entry मतलब जो गुडविल रेज करे थे उसको राइट ऑफ कर दो. तो राइट ऑफ मतलब यहाँ पे गुडविल डेबिट है तो हमने क्या कर देना है क्रेडिट. बट हियर द थिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अप्लाई द न्यू रेशियो. सो न्यू रेशियो मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर वुड बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. सो हियर कंटिन्यू कौन कर रहे हैं हमारे C is left, C is leaving the firm. So entry क्या आ जाएगी A is capital account debited, B is capital account debited to goodwill account. अगेन गुडविल अकाउंट में आपने डालना 3 lakh और यहाँ पे मेरे को चाहिए न्यू रेशियो. दैट इज व्हाई आई हैव फाइंड आउट द न्यू रेशियो. सो 1 lakh and 2 lakh. In this way, if the question is asked, pass the journal entry to goodwill account, so you will raise and write off the goodwill account. Clear? So in this way, this is only one entry, one method in the goodwill concept. That is what continuing partner debited to retiring partner. और the other thing is अगर goodwill के through entry करनी है तो आपने दो करनी है raise और write off. And one more entry we have done regarding the goodwill already appeared. तो उसमें क्या कर देना है सारे partner debited to goodwill account. So in this way we will solve the goodwill treatment. So यहाँ पे कोई प्रीमियम कोई करंट किसी चीज का चक्कर नहीं है. सिर्फ आपने जो पार्टनर जा रहा है उसको आपने हर चीज देनी है. तो उसमें स्टार्टिंग आती है हमारे गुडविल अकाउंट की. फाइन. सो नेक्स्ट पार्ट इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमारा है दिस इज जस्ट द रेपिटेशन जो हमने 4th चैप्टर में भी करा, 5th में भी करा, अब 6th में भी करना है और इसके बाद 7th में भी बेटा यही करना है. सो प्लीज कीप द लॉजिक क्लियर रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट. So revaluation account is the nominal account. Nominal account में क्या होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. सो हियर आपको आपके पास दो चीजों की ट्रीटमेंट आएगी, एसेट्स की और लायबिलिटी की. और एसेट्स में
column. Fine. So assets are always debited. तो assets की नेचर क्या होती है? assets होते हैं हमारे डेबिट. तो अगर आपने इनको और बढ़ाना है तो आपने और डेबिट कर देना. और क्रेडिट कौन होएगा? रिवैल्यूएशन. जैसे अगर मैंने स्टॉक को इंक्रीज करना है तो मेरी एंट्री क्या बनी? स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन. इन द सेम वे अगर मैंने क्रेडिट मतलब अगर डिक्रीज करना है तो मैंने स्टॉक को कर देना है क्रेडिट. लिखा कैसे होएगा? स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड, स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड, या फिर स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू. अब टू और बाय का बहुत डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था. टू मतलब आपको न्यू वैल्यू दी, आपने डिफरेंस में, और बाय मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीधा वही अमाउंट डालेंगे जो डिवाइड बाय से है. क्लियर? सो द सेम वे लायबिलिटीज की नेचर क्या होती है? क्रेडिट. इट मींस अगर आपने लायबिलिटीज को बढ़ाना है, लायबिलिटीज में क्या क्या आती है? कोई भी प्रोविजन, कोई भी क्लेम, दीज आर आल्सो हैविंग द क्रेडिट नेचर. या फिर क्रेडिटर्स, कोई आपको वर्कमैन का क्लेम नहीं, आपके पास फंड को बनाना है, और आप द नेचर ऑफ लायबिलिटीज. तो नेचर ऑफ क्लेम की क्रेडिट अगर आपने बढ़ाना है तो और क्रेडिट कर देना, मतलब लाइक रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन टू बिल्स पेबल, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. सो अगर आपने कम करनी है तो आपने कर देना डेबिट. लाइक प्रोविजन आपके पास 5000 है, अब वो कहते हैं कि सिर्फ 2000 रखनी है. इट मींस हमें 3000 को डिलीट करना अपने बुक में से, मतलब कम करना. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन. और सिमिलरली अगर आपने बढ़ानी है तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. सो द सेम वे लायबिलिटीज वुड बी रिकॉर्डेड. और यहाँ पे भी अगर कोई चीज अनरिकॉर्डेड है, जैसे यहाँ पे कोई आप आउटस्टैंडिंग सैलरी भूल गए, कोई आपको प्रीपेड जो प्री रिसीव्ड इनकम है वो भूल गए हो, सो यू कैन रिकॉर्ड सच लायबिलिटी, मतलब इन द नेचर ऑफ क्रेडिट. सो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. एंड एट द एंड आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना है. और अगर जर्नल एंट्रीज करनी है तो भी आपने उनका बैलेंस देखना है, डेबिट का बढ़ा रहा है कि क्रेडिट का. सिंस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, अगर डेबिट साइड लार्जर है तो लॉस, और अगर क्रेडिट साइड लार्जर है तो प्रॉफिट. एंड इट मस्ट बी इन द ओल्ड रेशियो व्हिच आई हैव क्लियर्ड यू कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमें सारा कुछ देके जाना है, चाहे रिवैल्यूएशन हो, चाहे वो जर्नल्स हो, चाहे कोई और प्रोविजन या accumulated fund. So in this way, revaluation is just the similar as we did in the chapter 5th.